Hello everyone. Welcome to our Ask Geology, a whole new way to understand our Mother Earth. In this case, in this very complicated, very clumsy, very this is not very clean. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारा बारकोड है. By scanning this barcode, you will be getting access to our website, and these are website. सब है, देख लो, जाके थोड़ा कमेंट वमेंट भी करो साले, कुछ नहीं करते हो तुम लोग. सो दिस इज 22nd November. सो ये लास्ट क्लास का कंटिन्यूएशन क्लास ही है. सो इन दिस केस वी विल बी ट्राइंग टू एक्सप्लेन basically the simple eutectic relation of your ternary diagram. Okay, ternary diagram, all of you know ternary means three component diagram. Okay, three component diagram. In this case today we will consider only this one. This is anorthite, diapside and fosterite. Diapside, fosterite, anorthite, first we will consider this one. And in this case I'll be assigning you some HW. ओके, सम एच डब्ल्यू मैं तुमको दूंगा. वो एच डब्ल्यू सब लोगों को करके आना होगा, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ एच डब्ल्यू पूछने के लिए. बट नेक्स्ट क्लास से मैं यही पूछूंगा स्टार्टिंग में. एंड देन विल गो टू दिस anorthite, fosterite and quartz. Anorthite, fosterite, quartz and this diopside, fosterite, silica, diopside, fosterite, quartz. These two are very important. Okay, another one is nepheline, calcilite, and silica. This is one ternary diagram which is also present in GSI syllabus, but maybe I don't think this is being asked a lot of time. But this diopside, fosterite, silica, this is very important. Okay, this is very important. Why it is important? Because this diagram is characteristically, it defines the evolution of your different rock or different magma series starting from basalt to rhyolite. ओके, क्योंकि ये देखो, ये तुम्हारा इसमें थोड़ा थोड़ा बोल देता हूँ, ठीक है. उसके बाद हम जाएंगे, इसको पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे, लेकिन ये तुम्हारा अलग सा सेपरेट क्लास तो रहेगा, मैं पहले भी बोल दिया हूँ, ठीक है. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दिस इज बेसिकली 1 atm प्रेशर. This experimental curve or experimental diagram, it is maintained at 1 atm pressure. But if you just increase the pressure na, if you just increase the pressure, maybe some 5 kilobar pressure, okay, then this pigeonite field, it vanishes, first thing. Second thing, this two or this region that basically vanishes, and ये ऐसे हो जाता है. now यहाँ पर आ जाता है. now this जो ये जो curve है ना, that comes to this point, ये जो curve that comes to this point, and this pigeonite, there will be only single straight line in between. Okay, so this is basically tells you the evolution of your different rock compositions. And starting from this point to this point, you will be encountering basalt, basaltic andesite, ductite, then rhyolite. All of you know basalt is mafic, rhyolite is felsic. And this is basically the basalt evolution trend. What is it called? It is called basalt evolution trend. ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया. एंड इसके रिलेटेड जितना भी बात था वो लास्ट वीडियो में हम बता दिए हैं, देख लो. तो अभी हम चलते हैं ये क्या, फोस्टराइट, डायोक्साइड एंड अनॉर्थाइड केस में. दिस इज डायोक्साइड, अनॉर्थाइड, फोस्टराइट. ऑल ऑफ यू नो दिस डायोक्साइड, this is one pyroxene, OPX. Anorthite, this is one plagioclase. Fosterite, this is olivine. Olivine crystallization, orthorhombic system. Pyroxene crystallization, both orthorhombic and monoclinic system. Plagioclase crystallization, orthorhombic, monoclinic, triclinic. Okay, है ना. सॉरी, ये मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक में होता है, ऑर्थोरॉम्बिक में होता है कि नहीं पता नहीं, देख लेना तुम. Now you can see in this case, this anorthite and fosterite and anorthite, they also show one simple binary eutectic relation. Okay, simple binary eutectic relation जो हम फर्स्ट क्लास में बताए थे, बाइनरी जो पढ़ा रहे थे. This is in 72.5 and 27.5. Maybe this is basically the eutectic proportion. Okay,
And in this case, this anorthite and diopside and anorthite, that is basically the tells about the evolution of your gabbro, that gabbro gobru, ठीक है. सो ये जो तुम्हारा, दिस इज ऑल्सो वन सिंपल बाइनरी यूटेक्टिक रिलेशन. ओके, एक मिनट. हाँ रंजित, चल रहा है क्लास. हाँ हाँ हाँ, पता है पता है पता है. दैट्स वाई अभी आज निहार का क्लास था, दैट्स वाई आई एम टेकिंग द क्लास. नो प्रॉब्लम, यू विल गेट द वीडियो. ओके ओके. ओके, तो यहाँ पे in diopside and phosphorite, this is also showing one eutectic, simple eutectic relation. And ternary diagram, what is basically these ternary diagrams? These are nothing but three component systems. Okay, and if we just consider the sides of the triangle, then these are simple eutectic relationship. And if you just mix the eutectic relations, eutectic जो होगा, then they will just, ये एक पूरा surface होगा in the नेक्स्ट डायग्राम नहीं, ये जो तुम्हारा सरफेस रिलेटेड जो थिंग्स है ना, हाउ दे आर कन्वर्जिंग, एक पूरा सरफेस बनाएंगे. वो वाला सरफेस मैं वीडियो एक बना के डाल दूंगा, ठीक है. यू कैन हैव, यू कैन जस्ट सी दोज थिंग्स ऑल्सो. हाँ, तो यहाँ पे देखो, अभी एक पर्टिकुलर कंपोजिशन लेंगे, पर्टिकुलर कंपोजिशन कैसे कैसे जाएगा वो हम देखेंगे, ठीक है. नाउ इफ यू जस्ट, यू कैन सी दिस इज 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज 1500, दिस 1600, 1700, 1800, दिस इज 1890. जो तुम्हारा टेम्परेचर के लिए अलग सा कुछ एक्सिस है नहीं. टेम्परेचर इज द डायरेक्टली वर्टिकल एक्सिस. वर्टिकल एक्सिस मीन्स दैट इज द एक्सिस दैट इज पॉइंटिंग डायरेक्टली अप फ्रॉम दिस पेज ऑफ पेपर. ओके, ये जो पेज है, इसके डायरेक्टली ऊपर आ रहा है, दैट इज बेसिकली द टेम्परेचर एक्सिस. ओके, एंड ऑल ऑफ यू नो, जब टेम्परेचर नीचे 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 जाता है, देन दैट अलाउज और दैट फैसिलिटेट्स द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस. ओके, तो यहाँ पे एक कंपोजिशन लेते हैं, सिंपल, कोई सा दिक्कत नहीं है. यहाँ से लेट दिस इज द इनिशियल बॉल कंपोजिशन. सो इनिशियल बॉल कंपोजिशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो 5 पॉइंट में आता है. लेट दिस इज द एक्स कंपोजिशन. नाउ ये क्या होगा, दिस इज द प्राइमरी फील्ड ऑफ फोस्टेराइट, दिस इज द प्राइमरी फील्ड ऑफ अनोथाइट, दिस इज द प्राइमरी फील्ड ऑफ डायोक्साइड. नाउ ये क्या करेगा, इफ इट इज फॉलिंग ऑन द ओनली द फोस्टेराइट, this is the only the primary field of fosterite, then it will start to crystallize simply fosterite, isn't it? तो ये क्या करेगा, if it is फोस्टेराइट यहां से क्रिस्टलाइज हो रहा है, ये पूरा एक लिक्विड है, लिक्विड में से थोड़ा थोड़ा फोस्टेराइट अभी क्रिस्टलाइज स्टार्ट, मतलब क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हुआ है. तो इफ इट इज द बॉल कंपोजिशन, देन ये जो तुम्हारा इवोल्यूशन होगा, ठीक है ना, हाउ दिस, ये इसका पाथ कैसे होगा, ये ऐसे जाएगा, या फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा, हाउ दिस कंपोजिशन विल मूव इन दिस डायग्राम, कोई मुझे बता सकता है? या स्ट्रेट लाइन, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है. ओके, इट विल गो through the straight line joining fosterite and composition X. That is a very beautiful answer. But the thing is that, why? Why it will just follow this line, this particular line? Na? You are just telling that if we just draw a straight line that will go through the fosterite, it will go just away from the composition. But why it will follow that path? Why not this path? Why not this path? Can you please explain? I didn't. Okay, nice explanation. Nice explanation, Malay. Interesting. So, यहाँ पे देखो, now it is falling in the primary field of fosterite. ठीक है. सो यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट जो क्रिस्टल फॉर्म होगा, कहाँ पे फॉर्म होगा, यही फोस्टेराइट में फॉर्म होगा, है कि नहीं?
फोस्टेराइट इसी वाले पॉइंट में तो तुम्हारा इनिशियल सॉलिड व्हेन इट इज एक्चुअली बेसिकली वी आर कंसीडरिंग द क्रिस्टलाइजेशन. ओके, एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर इट इज गेटिंग क्रिस्टलाइज्ड. ओके, नाउ यहाँ पे एक सॉलिड, यहाँ पे थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म हुआ. ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म हुआ. तो ये जो सॉलिड है इट इज बेसिकली एक सिस्टम जिसमें तुम्हारा लिक्विड एंड सॉलिड दोनों है. बट इफ आई एम जस्ट ट्राइंग टू जस्ट फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस सॉलिड फॉर्म्ड, तो सॉलिड कहाँ पे बनेगा? सॉलिड इवोल्यूशन पाथ हम स्टार्ट करेंगे तो सॉलिड पहले कहाँ से बनेगा? ये फोस्टेराइड में ही बनेगा. एंड ये धीरे धीरे ऐसे जैसे जैसे दूर दूर तक जाएगा, द वेट परसेंटेज ऑफ फोस्टेराइड बीइंग फॉर्म्ड वो धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज करेगा. बट इट विल नॉट मूव इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन बिकॉज इट इज स्टिल क्रिस्टलाइजिंग ओनली फोस्टेराइड. इट इज स्टिल क्रिस्टलाइजिंग ओनली फोस्टेराइड. लास्ट क्लास में मैं बताया था कि जब भी इन टॉर्नरी टॉर्नरी डायग्राम में ये जो बल्क कंपोजिशन होगा, that will be that will just act as a reference point from where you will just draw these tie lines or the straight lines, and then you will apply the lever principle to know the instantaneous weight percentage of your solid and liquid, isn't it? तो ये जो यहाँ से जो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में जो मूव करता है, दिस इज बेसिकली नथिंग बट दिस इज वन आर्किमिडीज प्रिंसिपल तुम बोल सकते हो. ये जो लाइन है, this rule is being followed, that is called your Archimedes rule और Archimedes principle. दिस इज नॉट Archimedes थ्योरम, Archimedes नहीं है, दिस Archimedes प्रिंसिपल. तो ये डायरेक्टली हाउ ये मूव करेगा. एंड यहाँ पे इसके पास ओनली द सॉलिड्स जो फॉर्म हो रहे ओनली फोस्टेराइड्स ही हैं और कुछ नहीं है. दैट्स व्हाई इट विल डायरेक्टली मूव अवे फ्रॉम द, दिस इज एक्चुअली द कंपोजिशन ना, दैट्स व्हाई इट विल फॉलो दिस पाथ. तो धीरे 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 आएगा. नाउ इट विल टच दिस पॉइंट. इफ इट जस्ट टच दिस पॉइंट, then this is basically the liquid evolution path, isn't it? This is basically the liquid evolution path. We're considering the crystallization. Now when it is touching the anorthite primary field, then anorthite is coming in the system. anorthite अभी धीरे धीरे आ रहा है. अभी anorthite धीरे धीरे आ गया. यहाँ पे the first crystal of your anorthite that will start to crystallize, then it will move. Now in the system we are having फोस्टेराइट plus of anorthite. So अभी फोस्टेराइट हमारे पास है. If we are getting anorthite तो हम किस लाइन पे मूव करेंगे? तो इसी लाइन पे मूव करेंगे, isn't it? सबको दिख रहा है ना? ये देखो फोस्टेराइट अभी तक था, अनोर्थाइट धीरे धीरे आ रहा है तो अनोर्थाइट यहाँ मूव करेगा. क्योंकि ये जो लाइन है दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग योर फोस्टेराइट एंड अनोर्थाइट. यहाँ पे देखो फोस्टेराइट 100%, अनोर्थाइट 0. इफ इट इज अनोर्थाइट थोड़ा थोड़ा आ रहा है देन यहाँ पे आएगा कितना होगा? फोस्टेराइट 99, अनोर्थाइट 1. यहाँ पे आएगा धीरे धीरे अनोर्थाइट का प्रोपोर्शन जो बढ़ेगा, देन दिस solid evolution path that will follow this trend. ठीक है, एंड धीरे धीरे आ गया आ गया आ गया आ गया, आ गया देन यूटेक्टिक पॉइंट में पहुंच गया. ना ये देखो फोस्टेराइट अनोर्थाइट जो तुम्हारा मिक्स मिक्स हो के इस साइड में आ रहा है आ रहा है आ रहा है. एक पॉइंट अभी यूटेक्टिक पॉइंट में तुम्हारा डाइऑक्साइड इज कमिंग इनटू पिक्चर. ठीक है, अभी तुम्हारे पास डाइऑक्साइड भी आ रहा है. तो डाइऑक्साइड अगर आ रहा है, देखो ये तुम्हारा कंपोजिशन है अभी तक सॉलिड, ये तुम्हारा सॉलिड का कंपोजिशन है. इसमें क्या है? तुम्हारा फोस्टेराइट है प्लस ऑफ अनोर्थाइड भी है. नाउ इन दैट सॉलिड कुछ कुछ डाइऑक्साइड भी अभी बनना स्टार्ट हो रहा है. तो अब अगर ये जो पॉइंट है, इफ वी आर जस्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन देन डाइऑक्साइड इज स्टिल 0. बट हम बोल रहे हैं कि डाइऑक्साइड सिस्टम में आ रहा है. सो अभी अगर इसको हम यहां पर इस डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे, let this point in the sense it is having some fosterite, it is having some anorthite, and it is having some diopside also, isn't it? तो ये क्या होगा कि धीरे 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 व्हेन एट दिस यूटेक्टिक पॉइंट धीरे धीरे तुम्हारा जो डायोक्साइड क्रिस्टलाइज करना स्टार्ट होगा, इट विल जस्ट ट्राई, ये देखो बल्क कंपोजिशन से ऐसे होके इस वाले पॉइंट में, सॉरी ये थोड़ा आगे निकल गए हम, इस वाले पॉइंट में
तुम्हारा डाइऑक्साइड क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट करेगा। देन क्रिस्टलाइज हो के धीरे धीरे आ जाएगा। द इनिशियल बोल्ट कंपोजिशन जो था, फाइनल बोल्ट कंपोजिशन ये तुम्हारा डायरेक्टली एक सॉलिड बन जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट द इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन। जहां पर तुम्हारा लिक्विड इवोल्यूशन पाथ कौन सा है, दिस इज योर लिक्विड इवोल्यूशन पाथ। एंड व्हाट इज द सॉलिड इवोल्यूशन पाथ, दिस इज योर सॉलिड इवोल्यूशन पाथ, दिस वन। एंड दिस इज योर लिक्विड इवोल्यूशन पाथ। ठीक है, हो गया। अभी कहीं पर भी तुम पॉइंट लो, दिस इज सिंपल, यू टेक टिक, तो कहीं पर भी पॉइंट लो, कोई दिक्कत नहीं। यू कैन सी यहां पर एक पॉइंट लिया हुआ है, यू कैन राइट, यू कैन सी दिस इज टोटली 100% लिक्विड, isn't it? Totally 100% liquid because it has not reached the crystallization temperature. अभी देखो crystallization अभी धीरे धीरे 99% liquid, 1% fosterite because it is falling in the primary field of fosterite. Okay, 1% fosterite. Then you can see यहाँ पर हम straight line अगर जोड़ेंगे then ये fosterite को दे के क्रॉस करेगा and directly away it will try to move. ओके, यहाँ पर देखो लिक्विड का प्रोपोर्शन धीरे धीरे घट रहा है एंड फोस्टेराइट का प्रोपोर्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये जो तुम्हारा व्हेन यू आर कंसीडरिंग वन मैग्मा चैम्बर एंड मैग्मा चैम्बर में से कुछ क्रिस्टलाइज हो रहा है, इफ समथिंग इज क्रिस्टलाइजिंग दैट इंप्लाइज, अभी यहाँ पर ए बी सी तीन फेजेस हैं। इफ आई एम जस्ट ट्राइंग दैट यहां से ए क्रिस्टलाइज हो रहा है, ए भी 10 ग्राम है, बी भी 10 ग्राम है, सी भी 10 ग्राम है, तो इफ आई जस्ट टेल दैट ए अभी स्टार्टिंग टू क्रिस्टलाइज, देन द वेट परसेंटेज ऑफ योर ए इन द मेल्ट, आई एम जस्ट रिपीटिंग, द वेट परसेंट ऑफ ए इन द मेल्ट, वो क्या हो रहा है, दैट इज डिक्रीजिंग। मेल्ट में डिक्रीज हो रहा है क्योंकि मेल्ट में जितना था दैट इज गेटिंग एसोसिएटेड, वो कहां जा रहा है, सॉलिड में घुस जा रहा है, सॉलिड बना रहा है। अगर सॉलिड बना रहा है तो लिक्विड में से तो उसका वेट परसेंटेज घटेगा। देन रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ योर बी एंड सी, दे आर आल्सो इंक्रीजिंग। रिलेटिव, रिलेटिव, समझ रहे हो, रिलेटिव 10 ग्राम में से अभी अगर लेट 5 ग्राम अभी क्या हुआ, तुम्हारा सॉलिड बन गया, तो 5 ग्राम अभी तुम्हारे लिक्विड में है, 5 ग्राम लिक्विड में है, इसका मतलब ए का जो वेट परसेंटेज 10 ग्राम था वो तो घट के 5 हो गया। नाउ द वेट परसेंटेज ऑफ योर ए इन द मेल्ट इज डिक्रीजिंग। अभी देखो ए 10 था, बी भी 10 था, सी भी 10 था। नाउ अभी इफ इट इज 5 ग्राम अभी क्रिस्टलाइज हो गया है तो ये हो गया 5, ये अभी भी 10, ये भी अभी भी 10। देन वेट, रिलेटिव वेट परसेंटेज ऑफ योर बी एंड सी, दैट इज आल्सो इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे व्हेन इट इज ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम दिस बल्क कंपोजिशन, अवे फ्रॉम द फोस्टेराइट, ओके 100% फोस्टेराइट पॉइंट, देन क्या हो रहा है, फोस्टेराइट का वेट परसेंटेज घट रहा है। ठीक है, एंड क्या हो रहा, तुम्हारा अनोर्थाइड एंड डायोक्साइड का वेट परसेंटेज, रिलेटिव वेट परसेंटेज दैट इज इंक्रीजिंग। अभी धीरे धीरे जा रहा है, फोस्टेराइड घट रहा है, फोस्टेराइड घट रहा है, फोस्टेराइड घट रहा है। ठीक है, यहाँ पे जब आएगा नाउ ये अनोर्थाइड विल स्टार्ट टू क्रिस्टलाइज, तो यहाँ पे फोस्टेराइड का तो परसेंटेज गिर रहा था, अभी अनोर्थाइड का परसेंटेज भी गिरेगा। then this liquid is getting saturated, not saturated, or this is getting diluted with more dioxide, क्योंकि डाइऑक्साइड अभी बहुत ज्यादा हो रहा है, रिलेटिव प्रोपोर्शन। फाइनली यहाँ पे आएगा, डाइऑक्साइड पहुंच जाएगा, देन ये सब एक साथ क्रिस्टलाइज कर जाएंगे। यू कैन सी 86% अभी भी लिक्विड है, 14% फोस्टराइड है। यहाँ पे देखो पॉइंट और थोड़ा मूव कर गया, देन 21% फोस्टराइड, उसके बाद 30% फोस्टेराइट, देन उसके बाद 35% फोस्टेराइट, देन फाइनली व्हेन इट इज जस्ट टचिंग द अनोर्थाइड फील्ड, ये क्या हो रहा है, 43% फोस्टेराइट है। ये देखो यहाँ पे फोस्टेराइट भी है, अनोर्थाइड फील्ड में अभी आ गया है, एंड 46% लिक्विड भी है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। अभी यहाँ पर कैन एनीवन टेल कि यहाँ पर तो फोस्टेराइड था, ये तुम्हारा लिक्विड इवोल्यूशन पाथ है, तो सॉलिड इवोल्यूशन पाथ कहाँ पर होगा, सॉलिड का कंपोजिशन अभी कहाँ पर होगा, यू कैन सी ये हमारा अभी कंपोजिशन है,
दिस इज अवर कॉम्पोजिशन। ये कॉम्पोजिशन में क्या क्या है, ये देखो अनोर्थाइट है एंड फोस्टेराइट है, हमारे पास क्या क्या है, फोस्टेराइट है और अनोर्थाइट है। तो फोस्टेराइट एंड अनोर्थाइट का एक सॉलिड कंपोनेंट इफ वी जस्ट वांट टू ट्राई टू जस्ट प्लॉट, तो कहाँ पे आएगा, ये इसके ऊपर ही आएगा, मे बी ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, अभी इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे, यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे थ्रू द बॉल कंपोजिशन। तो ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे बॉल कंपोजिशन के थ्रू अगर होता है, देन दिस कंपोजिशन विल बी इंस्टेंटेनियस सॉलिड, इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस सॉलिड कंपोजिशन। ठीक है, देन ये धीरे धीरे यहाँ ई पॉइंट में आ जाएगा, ई पॉइंट में आने के बाद क्या होगा, डायोक्साइड विल कम इनटू पिक्चर। देन यहाँ पे धीरे 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 यहाँ एक पॉइंट लोगे, तो दिस इज द बल्क कंपोजिशन ऑफ योर सॉलिड व्हेन डायोक्साइड इज स्टिल नॉट क्रिस्टलाइजिंग। अभी डायोक्साइड धीरे धीरे क्रिस्टलाइज करेगा, तब क्या होगा, योर सॉलिड इवोल्यूशन पाथ क्या होगा, यहाँ से यहाँ था इस पॉइंट के लिए, उसके बाद इस पॉइंट के लिए यहाँ पे आया, देन डायोक्साइड धीरे धीरे आया, तो ये मूव करके यहाँ पे तुम्हारा इनिशियल बोल कंपोजिशन में आएगा। देखो धीरे धीरे आएगा, अभी देखो फोस्टेराइट अनोर्थाइट डायोक्साइड यूटेक्टिक पॉइंट में, क्योंकि अभी डायोक्साइड धीरे धीरे आ रहा है। देखो फोस्टेराइट 51, क्योंकि फोस्टेराइट पहले क्रिस्टलाइज किया था, अनोर्थाइट 30, देखो अनोर्थाइट बाद में आया, देन 19 19% डायोक्साइड अभी अभी सिस्टम में आ रहा है। ठीक है, यूटेक्टिक पॉइंट पे, एंड दिस इज बेसिकली द इनिशियल द लाइक दिस इज एक्चुअली द बल्क कंपोजिशन जो तुम लिए थे, 19% डायोक्साइड हो गया है। यू कैन सी डायोक्साइड सॉरी दिस इज 19% हो गया है, देन फर्दर इट विल ट्राई टू क्रिस्टलाइजेशन फर्दर स्टार्ट होगा, तो जो तुम्हारा इनिशियल कंपोजिशन है वही वाला तुम्हारा फाइनल कंपोजिशन होगा। ठीक है, ये है तुम्हारा सिंपल यूटेक्टिक। क्या है ये तुम्हारा सिंपल यूटेक्टिक। ठीक है, अभी यहां पर किसी का डाउट है तो पूछो। आई थिंक किसी का भी डाउट नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। यहाँ पर भी एक बॉल कंपोजिशन ले लोगे तो ये आएगा यहाँ पे, देन ये मूव करेगा, देन यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन खत्म। यहाँ पे एक डायोक्साइड लोगे तो ये डायोक्साइड ऐसे जाएगा, यहाँ पे आएगा, देन फोस्टेराइट आएगा, यहाँ जाएगा, यूटेक्टिक पॉइंट खत्म। दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, अभी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। किसी का डाउट है क्या, शुभम? ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे इफ दिस इज बेसिकली योर कंपोजिशन, यहाँ पर ये कंपोजिशन अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो ये अभी एक तुम्हारा लिक्विड है। ये लिक्विड में से थोड़ा अभी देखो 1%, ये थोड़ा 1% क्रिस्टल बनना स्टार्ट हुआ है, और जो क्रिस्टल बना है वो किसका है, फोस्टेराइट का है। तो ये जो क्रिस्टल है दिस इज बेसिकली सॉलिड, और प्योर फोस्टेराइट है। अगर प्योर फोस्टेराइट है, देन इसको हम कहाँ पर प्लॉट करेंगे, मैं बोलूंगा सर यहाँ पर प्लॉट करेंगे। अगर यहाँ पर अगर हम प्लॉट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, फोस्टेराइट भी है, डायोक्साइड भी है, इजंट इट? तो ये सिर्फ फोस्टेराइट ही है। तो ये फोस्टेराइट, ये जो 100% फोस्टेराइट जो लाइन होगा ना, इसी के ऊपर ही रहेगा ना। व्हेन इट इज गोइंग अवे अवे अवे, यहां तक भी तुम्हारा सिर्फ फोस्टेराइट यहीं पे बढ़ रहेगा। वो 1% है, वहां पे में भी कुछ 10% या फिर 15%, वो धीरे धीरे उसका प्रोपोर्शन बढ़ेगा। ठीक है, व्हेन इट इज टचिंग दिस अनोर्थाइड फील्ड एंड इट इज मूविंग, अनोर्थाइड भी क्रिस्टलाइज हो रहा है, देन द सॉलिड कंपोजिशन इट विल ट्राई टू मूव इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि सिस्टम में हमारा फोस्टेराइट एंड अनोर्थाइट है। अनोर्थाइट देखो, ये तुम्हारा अनोर्थाइट है, ये तुम्हारा फोस्टेराइट है। ठीक है, तो अनोर्थाइड धीरे धीरे आ रहा है, तो ये यहाँ पे मूव करेगा, एंड व्हेन इट विल जस्ट टच दिस यूटेक्टिक पॉइंट, नाउ डायोक्साइड विल कम इनटू पिक्चर। तो वहां पे क्या होगा, ये आने के बाद ये मूव करेगा टुवर्ड्स इसके, इसमें अभी तुम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, स्ट्रेट लाइन, तो ये वाला जो कंपोजिशन होगा, यहां तक तुम्हारा फोस्टेराइट एंड अनोर्थाइड फॉर्म होगा। उसके बाद व्हेन दिस डायोक्साइड विल कम इनटू पिक्चर, देन जो तुम्हारा सॉलिड का इवोल्यूशन पाथ होगा, देन इट विल फॉलो दिस पाथ, ये वाला पाथ फॉलो करके जो इनिशियल बॉल कंपोजिशन होगा, देन फाइनल बॉल कंपोजिशन, यहाँ पे ये तुम्हारा सॉलिड बनेगा।
This is the solid evolution path and this is the liquid evolution path. एंड इंस्टेंटेनियस मैं अभी पूछना चाहूंगा कि इंस्टेंटेनियस में इसमें अभी सॉलिड क्या कितना है, लिक्विड कितना है, मैं अभी जानने की कोशिश करूंगा. लेट यहाँ पर ठीक है, फॉस्टेराइट में ये तुम्हारा सॉलिड है, ये तुम्हारा लिक्विड है. तो दिस बाय टोटल, दिस लेट दिस बी एक्स, this x by x plus of y, that will be proportion of this solid. लिक्विड के लिए क्या करेंगे, ये बॉल कंपोजिशन है ये वाला, दिस इज योर y, देन y by x plus of y into 100. ठीक है, अभी यहां पर धीरे धीरे इस साइड अगर आ जाएगा. एंड मैं ये भी बताया था जो तुम्हारा लिवर रूल है, ये जो लिवर रूल है, इट बेसिकली टेल्स यू अबाउट द इंस्टेंटेनियस सॉलिड एंड लिक्विड वेट परसेंटेज. ठीक है, अभी ये सॉलिड में तुम्हारा डायोक्साइड है कि फॉस्फेराइट है कि डायोक्साइड प्लस ऑफ फॉस्फेराइट है, ये तुमको नहीं बताएगा. ओके, ये नहीं बताएगा. ये कहां से हमें पता चलेगा, ये हमें बेसिकली एक पर्टिकुलर पॉइंट में से हम देख लेंगे, जियोमेट्रिकली हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे इसमें कितना कितना प्रोपोर्शंस है रेस्पेक्टिव फेजेस. ठीक है, ओके. शुभम, बुझे? ओके. शिराब्दी, हैं? अखंड, अरे खिराब्दी को बोल रहा हूँ. खिराब्दी, खिराब्दी. Okay, you were absent in the last class. Okay, you were not well. So, do you have any kind of doubt? No, you don't need to watch the yesterday video. Whatever I am teaching, na. Okay, okay. So, Kiravdi, one question. Kiravdi, one question. Who is tell about reaction? Okay, sorry. We'll have to write down reactions. That is interesting. Okay, let me just ask one question. Kiravdi, you just tell me in this diagram, this anorthite, forsterite and dioxide, can you just tell me what is the lowest temperature point? लोएस्ट टेम्परेचर पॉइंट क्या हो सकता है यहां पे? फिर आप दी चली गई क्या? लोएस्ट लोएस्ट टेम्परेचर पॉइंट कौन सा होगा? वेरी गुड, दिस इज योर eutectic point. This is basically the eutectic point, that is the lowest temperature point you will be encountering in this diagram. Okay, let it be, no problem. But guys, you just try by yourself, huh? सब तुम्हें ही करना होगा. बट ओके, नाउ मलय ही हैज टोल्ड टू राइट डाउन द इक्वेशंस. ओके, सो इक्वेशंस अभी हम कैसे लिखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड मे बी आई विल बी गेटिंग सम हेल्प फ्रॉम मलय ऑल्सो. सो यहाँ पे ये वाला एक जो पॉइंट है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, दिस इज वी आर कंसिडरिंग द सॉलिड लिक्विड सिस्टम. ओके, नाउ यहाँ पे लिक्विड से क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है. इन दिस पॉइंट व्हेन इट इज गोइंग अवे, यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड से तुम्हारा सॉलिड फॉर्म हो रहा है. तो यहाँ पे इफ आई जस्ट वांट टू राइट डाउन वन रिएक्शन, then that will be liquid is giving rise to phosphorite plus of liquid one, isn't it? Is it correct, Malay? Malay? Okay, then when it just touches this anorthite, so what actually happens? So what are the phases? यहाँ पे कौन कौन का फेज है? लिक्विड है, फोस्टेराइट है एंड अनॉर्थाइट है, इजंट इट? तो इसमें क्या क्या रिएक्शंस हो सकता है? यहाँ पे तुम्हारा फोस्टेराइट जो है
यहाँ पे दिस इज सिंपली यूटेक्टिक रिलेशन है, पेरिटेक्टिक रिलेशन तो है नहीं, है कि नहीं? तो डायरेक्टली तुम्हारा लिक्विड से फोस्टेराइड भी क्रिस्टलाइज होगा, लिक्विड से अनॉर्थाइड भी क्रिस्टलाइज होगा। Isn't it, Malay? Okay, can you just explain some other reactions in this case? Liquid is equal to phosphorite plus of anorthite. That is basically what I told. Because the liquid that will give rise to phosphorite and this liquid will give rise to your anorthite. So in this case, we are considering the crystallization, and this crystallization that is happening from a liquid to solid. That's why the reaction will be liquid will give rise to your phosphorite plus of anorthite. Simple. And in this eutectic point, hmm? Yes, okay, no problem. In instantaneous any kind of point अगर तुम ले रहे हो, ठीक है, यहाँ पे यहाँ एक पॉइंट लोगे, यहाँ एक पॉइंट लोगे, यहाँ यहाँ पर भी एक लिक्विड है, क्योंकि ये जो लिक्विड है, ओके, ये जो लिक्विड है, इफ दिस लिक्विड इज क्रिस्टलाइजिंग फोस्टेराइट एंड अनॉर्थाइट, देन द रिलेटिव वेट परसेंटेज ऑफ फोस्टेराइट component and anorthite component in this liquid is decreasing. Okay, and if we just want to name that liquid to a different liquid, then यहाँ पे हम L1 L2 कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। And when this eutectic temperature is coming, eutectic temperature, eutectic point में simple वही तुम्हारा लिक्विड में से ही तुम्हारा फोस्टेराइट हो रहा है, लिक्विड में से ही तुम्हारा अनॉर्थाइट हो रहा है, लिक्विड में से ही तुम्हारा डायोक्साइड होगा। So in the eutectic point we can have one reaction that will be liquid is equal to फोस्टेराइट plus of अनॉर्थाइट plus of डायोक्साइड, ठीक है। और उसके बाद हम डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक एक ये वाला पॉइंट में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, P प्लस ऑफ एफ इज इक्वल टू सी प्लस ऑफ वन निकालते हैं। फेज कितना है यहाँ पे तुम्हारा, फोस्टेराइट अनॉर्थाइट एंड लिक्विड तीन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने हैं, कंपोनेंट थ्री प्लस ऑफ वन। देखो यहाँ पर एफ इज इक्वल टू वन, डिग्री ऑफ फ्रीडम वन यहाँ जा रहा है। एट दिस यूटेक्टिक पॉइंट उसमें हम P प्लस ऑफ एफ इज इक्वल टू सी प्लस ऑफ वन निकालते हैं। फेज कितना है, फोस्टेराइट है, अनॉर्थाइट है, डायोक्साइड है, लिक्विड भी है, तो फेज हो गया फोर, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, कंपोनेंट कितना है थ्री प्लस ऑफ वन, देन हियर एफ इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे एक इनवेरिएंट पॉइंट, यूटेक्टिक पॉइंट आ रहा है। देन यहाँ पे क्या होगा कि any one of these phases will have to be consumed so that it can go further down, वो उससे नीचे भी जाएगा, है कि नहीं। यूटेक्टिक पॉइंट आ गया, यूटेक्टिक पॉइंट में भी यहाँ पर 1274 और मे भी सम लेट 1200 डिग्री सेंटीग्रेड यूटेक्टिक पॉइंट है। बट जो तुम सरफेस में पा रहे हो, इफ आर गेटिंग वन रॉक ऑन द सरफेस, देन दैट इज मेंटेन्ड एट लाइक 27 डिग्री सेंटीग्रेड ना। सो ये 1200 टू 27 डिग्री जो जाएगा, कैसे जाएगा, ठीक है, उसके लिए भी मूव करने के लिए यू नीड सम डिग्री ऑफ फ्रीडम ना। देन इन दिस केस द लिक्विड विल बी कंज्यूम्ड फुल्ली द लिक्विड विल बी कंज्यूम्ड, एंड इसमें अगर लिक्विड कंज्यूम हो जाता है, देन P प्लस ऑफ एफ इज इक्वल टू सी प्लस ऑफ वन अगर हम देखेंगे, देन P हो गया तुम्हारा कितना थ्री, एफ कंपोनेंट थ्री प्लस ऑफ वन, एफ इज इक्वल टू वन, यू आर गेटिंग वन डिग्री ऑफ फ्रीडम, सो यू आर free to move in the TX diagram. Simple. Okay, and always remember liquid and solid depending upon the miscibility. Okay, miscibility के बेस में liquids are miscible, liquid are miscible and solids are immiscible. Okay, I think, is there any some, is there anything that I am skipping, Malay? Is that okay? Okay.
Archimedes principle. Oh, no, no, no. I just told one that terminologies only. That it will simply go away, and whatever, like, if it is falling on this line, okay, okay, let me tell. If it is falling on this line, it will go. अभी ये ऐसे जो जा रहा है, that will be, यहाँ पर देखो इसमें जो तुम्हारा फेजेस है, अनोर्थाइट एंड फोस्टराइट्स हैं, एंड फोस्टराइट एंड अनोर्थाइट, यहाँ पर यू कैन सी दिस अनोर्थाइट एंड फोस्टराइट आर प्रेजेंट एट दिस साइड, और इस बेस, ये तुम्हारा बेस है, बेस में से डायरेक्टली अवे तुम्हारा कंपोजिशन मूव करेगा, एंड दिस इज बेसिकली द आर्किमिडीज थ्योरम और प्रिंसिपल। ठीक बताया ना मलय? Yes, this is basically the Archimedes principle or Archimedes line, Archimedes rule. ओके, और कुछ है जो हम छोड़ रहे हैं? Okay, then maybe we'll just move to this diagram. In this diagram, I will just give the introduction, and tomorrow maybe we will have some. We will have more discussion. Maybe tomorrow or the day after tomorrow. Okay. So in this case, you can say this is anorthite, this is fosterite, and this is quartz. And in between, we are getting one intermediate composition and statite. You can see fosterite and quartz. Fosterite and quartz, they are giving intermediate composition and statite. And at high pressure and at high pressure, this boundary that will vanish. Okay. So this is basically the fosterite and statite, fosterite and statite quartz, fosterite silica. This is anorthite silica. They're giving some simple eutectic relation. Fosterite anorthite, they are also giving simple eutectic relation. And यहाँ पर देखेंगे, this is basically a peritectic condition. This point is your P peritectic, this point is your E, that is your eutectic. ठीक है, यहाँ पे पेरिटेक्टिक कैसे हो रहा है? If it is happening one peritectic point, then what is the peritectic reaction happening in this case? Interesting. ठीक है, उसके बाद थोड़ा ऊपर चलते हैं, नीचे यू कैन सी दिस इज द टॉर्नरी पेरिटेक्टिक एट 1270 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड 1229 दिस इज द टॉर्नरी यूटेक्टिक रिलेशन. This is the cotectic curve, this is the peritectic curve. The unfortunately in this diagram, ठीक है, अभी देखो डायग्राम का नोटेशन बहुत इंटरेस्टिंग होता है. इफ वी आर गिविंग वन एरो, दिस इज यूटेक्टिक, सॉरी, दिस इज कोटेक्टिक कर्व, कोटेक्टिक कर्व or कोटेक्टिक line. But when it is happening or when it is showing some peritectic relationship, then we will have to give this type of two arrows. Okay, this is peritectic curve. ठीक है, यहाँ पर क्लास नोट्स में यहीं पर था, ये देखो, इन दिस केस यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर दिया है कि नहीं पेरिटेक्टिक? नहीं नहीं, यहाँ पर भी नहीं दिया है. तो पेरिटेक्टिक जो तुम्हारा जो उसको नोटेशन जो होता है, देन पेरिटेक्टिक के लिए सम लाइक दिस इज कोटेक्टिक कर्व, दिस इज पेरिटेक्टिक कर्व, सिंपल. दे हैव डिफरेंस बिकॉज दिस इज कोटेक्टिक, दिस इज पेरिटेक्टिक, इसीलिए थोड़ा अलग सा नोटेशन वहां पर दे देते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे टोर्नरी पेरिटेक्टिक, टोर्नरी यूटेक्टिक, यहाँ पर तुम्हारा एक पेरिटेक्टिक कर्व है, दिस इज कोटेक्टिक कर्व है. ठीक है, और क्या क्या है इसमें, यही है जो होगा नेक्स्ट कल पढ़ेंगे. ठीक है, टोर्नरी यूटेक्टिक में क्या रहेगा, टोर्नरी पेरिटेक्टिक में क्या रहेगा, और इफ वी आर जस्ट कंसिडरिंग डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन इन डिफरेंट फील्ड, तो यहाँ पर एक कंपोजिशन लेंगे, यहाँ पर एक कंपोजिशन लेंगे, यहाँ पर कंपोजिशन लेंगे, कहीं पर भी अगर हम कहीं पर भी कुछ कंपोजिशन लेते हैं, तो हाउ दिस फेज रूल और द सॉलिड इवोल्यूशन पाथ एंड लिक्विड इवोल्यूशन पाथ आर गेटिंग ट्रांसफर, और देयर फंक्शन कहाँ कहाँ जा रहे हैं, इसको हम देखेंगे. एंड बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग. द वीडियो इन यूट्यूब में, जो वीडियो अभी मैं जो दिया हूँ, वहां पे बेसिकली यही ये वाला डायग्राम है, ये वाला डायग्राम का पूरा वीडियो है. सो वहां पर तुम जाके देखो कि इफ द composition is changing, our ball composition is changing, how the path is changing. ओके, हाउ द पाथ इज चेंजिंग. एंड नेक्स्ट क्लास में हमारा फोकस रहेगा रिएक्शन लिखना, हमारा फोकस रहेगा. सेकेंड थिंग सॉलिड इवोल्यूशन पाथ, लिक्विड इवोल्यूशन पाथ. थर्ड थिंग द लिवर प्रिंसिपल. हमेशा सबसे इंटरेस्टिंग होगा यह रिएक्शन लिखना. ठीक है, तो इन तीनों को हम फोकस करके आगे बढ़ेंगे. सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट टिल नाउ, देन यू कैन आस्क. अदरवाइज आई विल जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, that thank you.